Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is 10th chemistry chapter 9 chemical equilibrium, and the topic that we will discuss today is self assessment exercises 9.1, 9.2 and 9.3. Okay, let's start. Self assessment exercise 9.1. Writing forward and reverse reactions for the following reactions. This is the reaction for ammonia synthesis, and we will write forward reaction जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो रिएक्टेंट एक्ट करेंगे, एंड हम इसको सिंगल हेडेड एरो के साथ लिखेंगे. एंड देन वी विल राइट रिवर्स रिएक्शन in which ammonia will act as a reactant, and the next reaction is formation of hydrogen iodide. In the forward reaction, hydrogen and iodine will act as a reactant, and we will write this reaction with single headed arrow. And in the reverse reaction, hydrogen iodide will act as a reactant, and we will write this reaction with the single headed arrow. Now discuss the properties that are macroscopic properties for forward and reverse reactions. मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं वो जो हम जनरली रिएक्शन को देखकर ऑब्जर्व कर सकते हैं. दीज आर नॉट रिलेटेड टू दी माइक्रोस्कोपिक लेवल, दैट इज एटॉमिक लेवल. ओके, इन फॉरवर्ड रिएक्शन इट इज़ रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स. And number 3, its rate means rate of forward reaction is fastest at the beginning and gradually slows down. And what about reverse reaction? Okay students, reverse reaction में हमारे पास it is written from left right to left, and products produce करते हैं reactants, and the rate of the reverse reaction is 0 at the beginning क्योंकि हमारे पास स्टार्ट में प्रोडक्ट्स नहीं होती. ठीक है, एंड ग्रेजुअली इट स्पीड्स अप. ओके, एंड फिर एक टाइम आ जाता है व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड एंड द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस बिकम इक्वल. सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 9.2. राइटिंग Kc एक्सप्रेशन दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस. अब हमारे पास ये रिएक्शन है लाइटनिंग स्टॉर्म में. ऑक्सीजन जो है वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है. इसके लिए हमने Kc का एक्सप्रेशन लिखना है एंड प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट. ओके, अब यहाँ पर देखेंगे ये रिएक्शन कैसे हो रहा है. बेसिकली स्टूडेंट्स, जब लाइटनिंग स्टॉर्म में जो बिजली है वो गरजती है तो उसमें जो एनर्जी होती है उसकी वजह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ब्रेक करता है इनटू 2 एटॉमिक ऑक्सीजन्स. These atomic oxygens are very much reactive that they combine with oxygen molecule and form ozone. Okay. Next question is writing equilibrium constant expression for the following reaction. अब इसमें हमारे पास वाटर एंड क्लोरीन जो हैं वो प्रोडक्ट्स हैं और HCl और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट्स हैं. एंड we have coefficient in the equations also that are written. Third question is the formation of esters. ठीक है, ये esters बन रहे हैं और इसके लिए हमें जो है वो equilibrium constant expression लिखना है. Let's write. Okay students, let's write the equilibrium constant expression for this reaction, that is product ethyl acetate divided by acetic acid and ethanol. ओके, एंड इन तमाम का जो है कोएफिशिएंट 1 है. And the next question is the formation of hydrogen gas and fluorine gas from hydrogen fluoride. Okay, let's write the Kc expression for this. Okay students, let's write the Kc expression for this. हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट है और फ्लोरीन भी प्रोडक्ट है.
and we have hydrogen fluoride as a reactant, और यहाँ पर हमारे पास 2 है coefficient, that's why we will write here 2. And now the next question is the formation of N2O4 from nitrogen oxide, dinitrogen oxide. This is dinitrogen oxide. So write the equilibrium constant expression for this. Okay students, let's write equilibrium constant expression. That is product का हमारे पास कोई कोएफिशिएंट नहीं है, 1 है, तो इसलिए 1 ही लिखेंगे. एंड हमारे पास रिएक्टेंट्स के 2 है कोएफिशिएंट, इसलिए हम उसका स्क्वायर लिखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 9.3, डिटरमाइनिंग द यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन. बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे पास एक रिएक्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड की फॉर्मेशन का, और इसके लिए हमने सबसे पहले केसी एक्सप्रेशन लिख लिया एंड देन हमने इसमें कंसंट्रेशन यूनिट्स पुट किए, दैट इज़ मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर. और इसमें हमारे पास जो कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं ऊपर भी हमारे पास 2 हैं और नीचे भी 2, तो वो आपस में कट ऑफ हो जाएंगे और नो यूनिट्स आएगा. ठीक है. एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, इसका केसी एक्सप्रेशन लिखते हैं. नाउ हम इसमें कंसंट्रेशन यूनिट्स पुट करेंगे. अब यहाँ पर हमारे पास ये कंसंट्रेशन यूनिट्स सब आपस में कट ऑफ हो जाएंगे एंड वी विल हैव नो यूनिट्स. दिस इज थर्ड क्वेश्चन एंड द डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इनटू फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन. अब इसका हमने यूनिट फाइंड आउट करना है. ओके स्टूडेंट्स, लेट राइट द केसी एक्सप्रेशन. नाउ पुट द कंसंट्रेशन यूनिट्स इन इट. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक कंसंट्रेशन यूनिट जो है वो कट ऑफ हो जाएगा एंड वी विल गेट मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर एज अ यूनिट. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द फॉर्मेशन ऑफ मेथनॉल फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. लेट्स सॉल्व इट. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स राइट द केसी एक्सप्रेशन फॉर दिस. And we have coefficient 2 here. Now put the concentration units. Okay students, now one concentration will be cut off with another one, और हमारे पास डिनोमिनेटर में मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर का स्क्वायर रह गया. ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, मोल्स को भी ऊपर ले आएंगे और क्यूबिक डेसीमीटर को भी. तो मोल्स जो है वो माइनस में चला जाएगा और क्यूबिक डेसीमीटर का जो प्लस माइनस का साइन है ये प्लस में चला जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, मोल स्क्वायर पर मोल स्क्वायर. ठीक है, इसको हम पर मोल स्क्वायर बोलेंगे एंड क्यूबिक डेसीमीटर का स्क्वायर DM6. ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम क्वेश्चंस आर ऑलरेडी डिस्कस इन द लेक्चर नंबर 4 और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. थैंक यू सो मच.